بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں آپ کا میزبان سعید رشید اور آپ میرا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں ملا کی اذان اور مجاہد کی اذان اور۔ آج میں ایک اسپیچ سن رہا تھا ایک صاحب کی، کوئی انجینئر صاحب ہے، میں ان کو ویسے فالو تو نہیں کرتا ان کو، مگر ان کی بھی ایک چیز مجھے بڑی پسند آئی۔ انہوں نے بھی ایک ایسی بات کی کہ کتابوں کا خدا اور بابوں کا خدا اور، تو مجھے لگتا ہے کہ کافی حد تک وہ اسی بات پہ ہیں جو ہم کہتے ہیں کہ ملا کی اذان اور۔ جو آخری ہم نے ویڈیو بنائی تھی اس میں اپنا جو یہاں سے پاکستان سے گئے تھے حج کے لیے، تو جو پہلا عمرہ ہم نے کرنا تھا اس سلسلے میں آپ لوگوں کے ساتھ میں نے کچھ چیزیں بتائی تھی اور آج اس کو ڈیٹیل سے آپ کو بتاؤں گا۔ مگر اس سے پہلے میں ایک دو چیزیں آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں جو میں نے پچھلے دنوں قرآن شریف سے نکالی ہیں۔ آپ کو یہ سن کے بڑی حیرت ہوگی کہ جس طرح اللہ تعالیٰ نے ہم پہ فرائض عائد کیے، نماز وہ واحد ہے جس کا کوئی آلٹرنیٹ نہیں ہے، اور یہی وہ جگہ ہے جہاں معراج کے اوپر اللہ نے میرے نبی کو جو نماز کے لیے اپنی امت کو کہا کہ 50 نمازیں، اور پھر بعد میں وہ 5 ہو گئیں، اور اللہ نے کہا ہر نیکی پہ 10 دوں گے تو 5 پڑھو گے۔ تو آپ دیکھیں زکوٰۃ ہے، حج ہے، اور آپ کا قربانی ہے، یہ آلٹرنیٹ کر سکتے ہیں۔ قربانی میں اگر آپ کے پاس حیثیت نہیں ہے تو آپ چھوڑ سکتے ہیں، حج کی آپ کے پاس حیثیت نہیں ہے تو آپ چھوڑ سکتے ہیں، زکوٰۃ کی آپ کے پاس حیثیت نہیں ہے تو آپ چھوڑ سکتے ہیں، روزے آپ اگر بیمار ہیں کوئی وجہ ہے آلٹرنیٹ کر سکتے ہیں، یا اگر آپ نہیں رکھ سکتے تو اس کا آپ صدقہ دے سکتے ہیں۔ مگر ایک نماز ٹاپ آف دا لائن جو آپ کے فرائض ہیں ان میں سے آتی ہے کہ جو آپ کسی بھی صورت سے بیماری میں کسی میرے نبی بیماری کی حالت میں آتے تھے اور نماز پڑھتے تھے، تو اس سے اندازہ لگائیں کہ نماز ہمارے لیے کتنی امپورٹنٹ ہے۔ جس طرح گناہ بہت سارے ہیں، ان میں سود جو ہے ٹاپ آف دا لائن ہے، تو اسی طرح نماز ہمارے فرائض میں سے ٹاپ آف دا لائن ہے۔ مگر نماز پڑھتے ہوئے ہم میں سے بہت کم لوگ ایسے ہیں جو یہ بات سمجھتے ہیں کہ نماز میں ہمیں کیا میسج ہے، ہم کیا اللہ سے بات کر رہے ہیں اور کیا اللہ ہم سے ایکسپیکٹ کر رہا ہے۔ بس کھڑے ہوتے ہیں، شروع ہوتے ہیں بسم اللہ اور الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم، ایک تیزی سے پڑھتے چلے جاتے ہیں بغیر سمجھے کہ ہم کیا بات کر رہے ہیں۔ آج میں آپ کو 2 ایسے حصے نماز کے ڈیٹیل میں سمجھاؤں گا یا شیئر کروں گا کہ آپ اگر نماز کو دیکھیں غور سے تو 2 ایسی چیزیں ہیں، 2 ایسی آیتیں ہیں جو ہر جگہ موجود ہیں۔ اگر آپ دن بھر میں 35 رکعت پڑھتے ہیں تو ایک آیت تو ایسی ہے کہ 35 کی 35 میں آپ کو پڑھنی ضروری ہے، اور ایک ایسی ہے کہ اس کے آدھے میں پڑھنی ضروری ہے کہ ہر دوسری آیت کے بعد پڑھنی۔ یہ 2 چیزیں ایسی ہیں جو میکسیمم اللہ نے آپ سے پڑھوائی ہیں، مگر وہی انسان نے کبھی غور نہیں کیا کہ اللہ یہ مجھ سے کیوں کروا رہا ہے، یہ 2 آیتیں ہی کیوں پڑھوا رہا ہے ہم سے۔ تو اس سلسلے میں آپ کو ذرا ڈیٹیل سے بتاؤں، جب ہم سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں تو ہم کیا کہہ رہے ہوتے ہیں؟ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین۔ جیسے آپ کسی بڑے انسان کے پاس جائیں تو پہلے اس کا سافٹ کارنر لینے کے لیے آپ تھوڑی ایسی باتیں کرتے ہیں جس سے اس کو لگے کہ آپ کوئی ایسا کام کروانے جا رہے ہیں جس کی آپ کو اس شخص سے اوکے چاہیے یا ادھر سے پرمیشن چاہیے، تو آپ کوشش کرتے ہیں کہ آپ اس انسان کی سافٹ کارنر ڈیولپ کریں۔ تو ہم اللہ سے یہ بات کہہ رہے ہیں کہ یہ جو پورا کائنات آپ نے بنائی ہے، اس کے اندر جو تعریف ہے وہ صرف آپ کی ہے، اور آپ رحمان اور رحیم ہیں، اور قیامت کے دن کے کرنے کا مجاز رکھتے ہیں، اور آپ کے پاس حق ہے کہ قیامت کا دن برپا کریں، مالک ہیں آپ قیامت کے دن کے۔ پھر ہم بات کرتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم۔ پھر ہم کہہ رہے ہیں اللہ سے کہ یا اللہ عبادت کرتے ہیں تجھ سے، اور مدد بھی تجھ سے ہی مانگتے ہیں، مدد بھی تجھ سے ہی مانگتے ہیں، اور کوئی ہمارے پاس نہیں ہے جس سے ہم مدد مانگیں گے، اور مدد مانگتے اور ہم یہ کہتے ہیں کہ یا اللہ ہمیں صراط مستقیم پہ رکھیو۔
इय्याक नअबुदु व इय्याक नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम, और उन लोगों के ऊपर उस लिस्ट में शामिल करियो हमें जिसको तूने हिदायत दी और जिनको इनाम दिया, जिनके साथ तूने अपने हिदायत का मामला रखा, हमें उस लिस्ट में डाल दे। और उसके बाद हम कहते हैं कि या अल्लाह हम उनमें से ना हो जिनके ऊपर आपने अपना गज़ब गुस्सा डाला, उनमें से ना हो। तो देखें, अब आप इसको गौर से देखें तो आप अल्लाह से हर नमाज में ये बात कह रहे हैं कि अल्लाह मुझे हिदायत दे। बहुत से लोगों के जहन में कॉन्सेप्ट होता है कि एक दफ़ा फजर में या तहज्जुद में हमने हिदायत की मांग ली दुआ तो वो काफ़ी है। ऐसा नहीं है, अल्लाह हर नमाज में ये कह रहा है। और उसकी वजह यह है कि अगर आप फजर में ये बात बोलते हैं तो जब तक दूसरी नमाज नहीं आती उसके दरमियान में आपके जितने अमल हैं, चाहे आप तिजारत करते हैं, घरेलू मामलात हैं, आप कहीं जा रहे हैं, कहीं आ रहे हैं, सफ़र में हैं, उसके लिए आप हिदायत मांग रहे हैं। एक नमाज से दूसरी नमाज के दरमियान का जितना आपकी ज़िंदगी है उसके ऊपर हिदायत मांग रहे हैं। फिर ज़ोहर से लेके असर तक के अंदर जो मामलात हैं उस पर हिदायत मांग रहे हैं। तो आप अंदाज़ा लगाइए कि आप अल्लाह से दिन भर में 35 दफ़ा हिदायत मांग रहे हैं। अब आप इससे ये अंदाज़ा लगाइए कि ये हिदायत की जो हमारी रिक्वेस्ट है वो अल्लाह से बार बार इसीलिए कि इंसान जो है भटकता है, और उस भटकने को रोकने के लिए हर नमाज में अल्लाह से हिदायत मांगते हैं। अब आपने दूसरी चीज़ अगर देखी है तो जब आप सिजदे के बाद दूसरी रकत में बैठते हैं तो आप अत्तहियात पढ़ते हैं। वो भी अगर आपकी 35 नमाजें हैं तो उसमें से आप समझ लें कि 15-16 आपकी अत्तहियात भी पढ़ी जाती है। बाकी दुरूद शरीफ है वो 1/4 होता है, आपका सना जो है वो 1/4 होती है, और इसके अलावा दुआ भी जो है वो भी 1/4 होती है। मगर ये दो चीज़ें, एक 100% है और एक आधी है। तो इनके अंदर अल्लाह ने वो सारी बातें रखी हैं जिससे अल्लाह इंसान को गाइड कर रहा है कि ये जगह है, यहाँ से तू मुझसे हिदायत मांग। अब अत्तहियात का हर इंसान पढ़ता है, मगर इतनी तेज़ी में पढ़ता है कि उसको खुद पता नहीं है कि मैं क्या पढ़ रहा हूँ। बस एक सीधे बस अत्तहियातु लिल्लाहि वस्सलावातु वत्तय्यिबातु, उसको उसका मतलब नहीं समझ। अल्लाह क्या कहलवा रहा है आपसे, अल्लाह इस जगह पे आपकी हर नमाज में आपसे क्या कहलवा रहा है। अब मैं आपको अत्तहियात का पूरा अल्लाह किस लिए हमसे ये अत्तहियात हर नमाज में पढ़वा रहा है, और दिन में 5 वक्त की नमाज में जिस तरह सूरह फातिहा है उस तरह अत्तहियात हम पढ़ रहे हैं। अब एक तो तरीका ये है कि तेज़ी से आप पढ़ लें, मगर जब आप पढ़ रहे हैं अत्तहियातु लिल्लाहि वस्सलावातु वत्तय्यिबातु अस्सलामु अलैका या नबी रहमतुल्लाहि बरकातुहू, जब अल्लाह के पास मेराज पे हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गए और वहाँ अल्लाह से जब कलाम किया, तो जब उधर पहुँचे मेराज पे अल्लाह के सामने, तो मेरे नबी ने सलाम नहीं किया। इसलिए सलाम नहीं किया कि जितनी दुनिया की सलामती है वो तो सब अल्लाह के लिए है, तो अल्लाह से आप कैसे अल्लाह को सलामती क्यों देंगे। इसलिए मेरे नबी ने सलामती की दुआ या सलाम नहीं किया, इसके बजाय अत्तहियातु लिल्लाहि वस्सलावातु, अल्लाह से कह रहे हैं कि ये जो ज़बान, ये जो कुछ है इंसान इस कायनात में, वो सब तेरी तारीफ़ करते हैं, और तू ही है इनका सब बनाने वाला, और तू ही है क्रिएटर इसका। जिसके बाद अल्लाह जवाब दे रहा है, अल्लाह मेरे नबी से जवाब दे रहा है कि या नबी सलाम अलैकुम, अल्लाह सलाम कर रहा है कि तुझ पे सलामती हो। जब मेरे नबी को उसने सलाम किया तो फिर मेरे नबी ने कहा कि मेरे साथ उन लोगों पे भी सलामती हो जो तेरे नेक बंदे हैं, जो नेक काम करते हैं। देखें, यहाँ पर भी मेरे नबी ने अपनी उम्मत को ख्याल रखा कि मेराज में जब अल्लाह सलाम पेश कर रहा है मेरे नबी को, तो मेरा नबी अपने उन उम्मतियों को भी बीच में शामिल कर रहा है कि उन पे भी सलाम हो जो नेक काम करते हैं और अल्लाह को याद रखते हैं। ये सारी बातें जब ये मुकालमा अल्लाह और मेरे नबी के दरमियान हो रहा था, तो उस वक्त वहाँ फरिश्ते ये सारी बातें सुन रहे थे। तो वो फरिश्तों ने फिर कहा
अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह, जो हम उंगली उठाते हैं जिस पे अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अब फरिश्ते इसमें इस कन्वर्सेशन में एंटर हुए और वो कहते हैं कि हम गवाही देते हैं कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के बंदे, अब्दुहु बंदे हैं और फिर रसूल हैं। डायरेक्ट रसूल नहीं बोला, उन्होंने बोला अल्लाह, इसलिए कि मेरा नबी भी अल्लाह का बनाया हुआ एक इंसान था, वो इबादत अल्लाह ही की करते हैं, तो फरिश्ते उसकी गवाही दे रहे हैं। आप अब इस बात से देखें कि आप अगर गौर करें नमाज में ये दो चीज़ें हम बार बार क्यों पढ़ रहे हैं, उसकी वजह यह है कि अल्लाह आपको ये गाइड कर रहा है कि आपको हर मिनट, हर सेकंड, हर आपकी ज़िंदगी के अमल में आपको हिदायत चाहिए, और वो हिदायत सिर्फ उस सूरत में मिलेगी जब आप 5 वक्त नमाज पढ़ेंगे और हर नमाज में अल्लाह से ये दुआ करेंगे कि मुझे हिदायत दे, और अगली नमाज में फिर अगली नमाज से पहले तक की हिदायत मांगेंगे। तो उम्मीद है आप लोगों को ये मेरी बात समझ में आई होगी, और आज के बाद जब भी आप लोग नमाज पढ़ें तो इन 2 चीज़ों को पढ़ते हुए ज़रा गौर करिएगा कि हम अल्लाह से क्या रिक्वेस्ट कर रहे हैं और अल्लाह से क्या चाह रहे हैं, और वो अल्लाह हमें, और इसका चेक भी यही है कि अगर हर नमाज के बाद आपको कोई आपके अमल में अल्लाह की तरफ से हिदायत मिलती है तो आप समझ लें कि अल्लाह ने आपकी दुआ कबूल करी, चाहे वो आपका बिजनेस है, चाहे आपका घरेलू मामलात है, चाहे आप सफ़र में हैं, उधर अगर आप हिदायत के हिसाब से काम करते हैं अपने मामलात में, अपने कारोबार में, वो काम करते हैं जो अल्लाह का हुक्म है, मेरे नबी का हुक्म है, तो आप समझें कि आप हिदायत पे हैं, और हर नमाज पे इस बात को चेक करते रहें। उम्मीद है आप लोग इस बात से मेरे मुतमईन हुए होंगे और आइंदा अपनी नमाज को सोच समझ के इस फ़र्ज़ को अदा करेंगे, और ये समझेंगे कि ये नमाज कितना बड़ा फ़र्ज़ है जिसका कोई ऑल्टरनेट नहीं है। उम्मीद है आपको पसंद आएगी। अल्लाह ताला आपको भी सेहत तंदुरुस्ती दे। मेरे लिए दुआ करिएगा। जज़ाकल्लाहु खैर। अल्लाह हाफ़िज़।